that is more beneficial for the JAM students. Okay. And we will also try to solve the Schrodinger wave equation and just try to see how you can solve the complicated system. And after then, we will complete the 2-dimension, 3-dimensional box and 2-dimension, 3-dimensional harmonic oscillator. So that will be part of basic quantum mechanics. And then we will go for again advanced part that we will start again harmonic oscillator for operator method. So that is mainly just TFR and net gate examination. If students are not comfortable into very high level of mathematics, mainly the JAM student, they can restrict themselves for up to basic level. Okay, that is the main course content of quantum mechanics. Anyway, so let's try to go for harmonic oscillator. What is your harmonic oscillator? What is the best example of harmonic oscillator? Simple pendulum. Simple pendulum. Simple pendulum is not a best example of harmonic oscillator. Spring mass. Mass system is the best example. Simple pendulum for a very small angle is the approximation, and that can be treated then as a harmonic oscillator, isn't it? So this is, you have to know this all thing. We will discuss this thing into classical mechanics. So I am just going to avoid it. If I am talking about harmonic oscillator, the best example is spring mass system. This is K, this is M, and the angular frequency of this spring is root under K upon M. And the potential for this particular system is half M omega square x square. So this is, and you can write this thing as a half K square also, Kx square also. So this is a spring constant, but in general, we will use this term to solve the quantum mechanical harmonic oscillator. If you are going to solve, or if you are going to plot it, this plot is something called parabolic potential. Potential hai? Parabolic potential means Vx is proportional to x square. So any potential where Vx is proportional to x square can be approximated to the harmonic potential. We will discuss when we will solve different types of problem. But right now, we are just solving this problem for a parameter m and parameter omega. Omega is angular frequency. Now, what is the classical picture of harmonic oscillator? Classically, आप क्या क्या देखोगे? Energy will continuous or discrete? Continuous. Continuous. You can have any value of energy. You can have any value of energy. You can have any value. So energy is continuous. Is continuous. I am talking about classical picture. Now, the particle classically will bounded between this particular well. You cannot find particle into this region. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Vx versus x. This is your energy E. So these 2 points are identified as what? Turning point. So how you can find the point? You can find the turning point. The total energy E is basically, Sir, fog on camera. sorry, Sir, कैमरे पे fog आ रहा है. फिर से हो गया. Just a minute. I am just doing something.
ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग थिंग, क्या किया जाए समझ में नहीं आता है। एनीवे, आप So कोई से these- ओपन करके हाँ बताओ बताओ, कोई एडवाइस दो, क्या करें? सर आप जहाँ पढ़ाते हैं ना रूम में, या तो आप वहाँ कुछ एसी हीटर टाइप का चलाइए या फिर कोई ओपन खिड़की वगैरह वेंटिलेशन। यार हीटर तो चलाता हूँ बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सर फिर वो मॉइस्चर उसी के कारण है, क्योंकि मैं भी कई बार स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना? सो नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ टर्निंग पॉइंट? मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। मैक्सिमम से Momentum is 0. So x is basically plus minus 2e upon m omega square. So one turning point is this. This is minus 2e upon m omega square. And this one is plus 2e upon m omega square. ठीक है ना? So particle is bounded between these two turning points. And that will depends on the value of energy actually. Clear है ये? So there is the energy level is continuous. The second thing is that particle confine inside the potential, there is not any chance, that particle can find in classical forbidden reason. Okay. Now third one is very interesting. थर्ड वन क्या कह रहा है वो जरा देखिए। थर्ड वन मैं फिर से पोटेंशियल प्लॉट करता हूं ताकि आप बेटर ढंग से समझ पाओ। दिस इज योर पोटेंशियल वर्सेज एक्स। सपोज मैं ये वैल्यू ऑफ एनर्जी लेता हूं, इस पॉइंट पर पार्टिकल की मोमेंटम क्या होगी? 0। इस पॉइंट पर क्या होगी? 0। ये दोनों एरिया तो क्लासिकल फॉरबिडन रीजन है। एंड एज पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड सेंटर, इट्स मोमेंटम इज गोइंग टू डिक्रीज और इंक्रीज? इंक्रीज करेगा। इसका मोमेंटम क्या हो रहा है? इंक्रीज करता करेगा। एज इट इज मूविंग टुवर्ड सेंटर, इट्स मोमेंटम इज गोइंग टू बी व्हाट? इंक्रीज। सो पार्टिकल सबसे फास्ट किस पॉइंट पे रहेगा? सेंटर पे रहेगा। अब मैं एक पर्टिकुलर dx ये लूं और एक पर्टिकुलर dx सेकंड वाला लूं, दोनों dx सेम है। ऐसा किया था वहां पार्टिकल इन बॉक्स में भी, है ना? ये फर्स्ट वाला dx है एंड दिस इज योर सेकंड वाला dx। इन विच ds पार्टिकल विल स्पेंड मोर टाइम? किस dx में पार्टिकल ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा? दोनों में सेम टाइम स्पेंड करेगा। जो सेंटर के पहले बनाया ना आपने सेकंड वाला, उसमें इसमें ज्यादा उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा पार्टिकल। वेरी गुड, वेरी गुड। सोचो सोचो क्या होगा when this type of mixed answer will come? That means that question is really scientific. हाँ बताओ सर। एट सेंटर उसकी क्या बोलते हैं सर, मोमेंटम मैक्सिमम रहेगा। जब मोमेंटम मैक्सिमम है तो सेम डिस्टेंस को क्रॉस करने में ज्यादा समय लगेगा, कम समय लगेगा? कम लगेगा। कम लगेगा। तो पार्टिकल्स ज्यादा कहां पर किस तरफ होने की उसकी प्रोबेबिलिटी होगी?
dx value. टर्निंग पॉइंट टर्निंग पॉइंट की तरफ अगर पार्टिकल है तो उस तरफ उसकी होने की चांसेस ज्यादा होगी, पार्टिकल ज्यादा समय स्पेंड करेगा। और सबसे कम समय कहां पार्टिकल स्पेंड करेगा? सेंटर के आसपास। आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। सो अगर मैं प्रोबेबिलिटी के टर्म में चीजों को लिखने की कोशिश करूं, देन इट विल एग्जैक्टली रिसेंबल विथ व्हाट? द ट्रेंड ऑफ पोटेंशियल, है ना? सबसे सर, ज्यादा समय कहां लगेगा? सेकेंड वाले रीजन. सबसे ज्यादा समय टर्निंग पॉइंट पर। और जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो, उसके वो पॉइंट को, डीएक्स को क्रॉस करने में क्या लग रहा है आपका? मिनिमम टू मिनिमम टाइम लग रहा है। और इसी को अगर आप देखोगे तो कैसा ट्रेंड है? बिल्कुल ही पोटेंशियल का ट्रेंड है ना? अगर आप इसको प्रोबेबिलिटी के टर्म में समझना चाह रहे हो तो दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द पार्टिकल इज मोर लाइकली नियर अबाउट सेंटर और नियर अबाउट टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट। तो क्लासिकली कहां लिखूं? यहां लिखता हूं। क्लासिकली पार्टिकल इज मोर लाइकली। मोर लाइकली का मतलब? मोर लाइकली का मतलब मोर वहां होने का चांस ज्यादा होगा, वहां पर वो रहना लाइक करेगा, है ना? तो मोर लाइकली टू फाइंड नियर टर्निंग पॉइंट। सर आई ऑब्वियसली किसी न किसी के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर, है ना? विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर। यस सर, एट सेंटर क्लासिकली वी है समटाइम्स से द स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। हाँ, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होने का क्या मतलब है? कोई भी पार्टिकल स्टेबल पार्टिकल उसकी तरफ जाना चाहेगा, वो तो Yes, बात sir. सही है, लेकिन वहां पर उसकी Second वेलोसिटी वाले- सबसे फास्ट रहेगी। मेरे को जब पार्टिकल उस स्टेट में जाना चाहेगा तो सर उस कंडीशन में वो वहां पे होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी ना। तो अरे सेकंड कहाँ हो रही है ज्यादा भाई? तुम तो मैकेनिक्स के थ्रू देख रहे हो ना, कहाँ पार्टिकल सबसे ज्यादा समय बिता रहा है? इक्विलिब्रियम वाले। पॉइंट से इसको कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? क्योंकि अपन क्लासिकली बात कर रहे हैं। हम क्लासिकली बात कर रहे हैं, तो क्लासिकली इक्विलिब्रियम पॉइंट का क्या मतलब है? देयर आर स्टेबल इक्विलिब्रियम, देयर आर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। स्टेबल इक्विलिब्रियम, यस सर। जहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, वहां रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा, यही तो है। सर रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है यहां पर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। लग रहा है वो सब कहां वायलेट कर रहा है? अगर रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है किसी पॉइंट पे, तो इसका ये गारंटी थोड़ी है कि उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, वो रुक जाए वहां पर। ओके सर, क्लियर। आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। है ना? आपने इक्विलिब्रियम पर पार्टिकल था, आपने इसको खींच दिया। अब खींच करके क्या होगा? यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, और सबसे ज्यादा स्पीड कहां पर रहेगा उसका? सेंटर पर रहेगा। तुम्हें समझ में नहीं आया कि सेंटर पर कितना देर रहा, लेकिन जब यहां जाएगा तो तुम बड़े अच्छे से देखोगे, अरे वाह, तुम तो वहां पर पहुंच गए हो। आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर 100% सर। ठीक है ना भाई? आप फरारी से जा रहे हो, आप मारुति से जा रहे हो, तो फरारी वाले जब क्रॉस करेगा तो तुम्हें समझ में आएगा क्या? नहीं सर। नहीं आएगा। तो यही पार्टिकल फरारी बन जाता है सेंटर पे। तो उस पॉइंट पर, उतने जगह पर देखते हो कभी जो फास्ट कार जाती है, आपके सामने कितना समय तक लग रहती है वो? नहीं रहती है, तुरंत निकल के चली जाती है। तो उस पॉइंट पर उसकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? ज्यादा होती है, कम होती है? बताओ। कम होती है। तो यही चीज यहां भी हो रहा है, जो दिख रहा है वही तो कर रहा है, कोई अलग से मैथमेटिक्स थोड़ी कर रहा है। सर मैं वो इक्विलिब्रियम, वो नहीं, इक्विलिब्रियम पॉइंट से तुम क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? क्लासिकल रिजल्ट के कारण किस पॉइंट पर कितनी स्पीड रहेगी, वो तो डिसाइड करेगा आपने क्या एनर्जी दिया है, उसकी एम्पलीट्यूड क्या है कि नहीं?
यस सर, एम्पलीट्यूड पर जाकर के वो पार्टिकल को रुकना ही रुकना है, इसीलिए तो उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मींस मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मींस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, इजंट इट? यस सर, यस सर, यस सर। ये सारा कहानी तो आप पढ़ चुके हो पहले से, है ना? ओके, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर. Let's try to see what is going to happen quantum mechanical harmonic oscillator. So let's try to go for quantum mechanical harmonic oscillator. So और क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आप कौन सा इक्वेशन सॉल्व करोगे? m इक्वल d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर x मस्ट बी इक्वल टू 0. यही होगा ना? यस सर, m भी होगा यहां पर, m ओमेगा स्क्वायर x मस्ट बी इक्वल टू 0. x की वैल्यू आ जाएगी a साइन t प्लस b cos t. क्या होगा? a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 0. कहां होगा? दैट विल डिपेंड ऑन इनिशियल कंडीशन. सो योर पोजीशन एंड सेम टाइम यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट मोमेंटम. सो योर पोजीशन एंड मोमेंटम इज प्रिसाइसली मेजरेबल. t पर पता है तो t इज इक्वल टू t नॉट पर तुम इजिली बता सकते हो क्या हो सकता है ना? सो दिस ऑल थिंग वी हैव डन इनटू द क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स से हम लोगों ने पढ़ रखा है. चलिए मुद्दे की बात पर पहुंचते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट? क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर. So what is your, you have to solve h psi is equal to what? E psi. टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व कर लो, काम हो जाएगा आपका. क्योंकि इन जनरल हमारे केस में पोटेंशियल क्या है? दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. बट टाइम आ जाता है तो खेल थोड़ी सी चेंज हो जाती है. सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व व्हाट? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. So obviously this is my kinetic energy operator. d square psi upon dx square. del नहीं लिखा है, d लिखा है क्योंकि वन डायमेंशन ही है. What is your potential energy? half m omega square x square psi x is equal to e psi x. अब इसे सॉल्व कैसे करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है. देखने में लग रहा है चलो अब ये कर देंगे वो कर देंगे, बट hence here is x square, this is function of x. आपने अभी तक जो भी सॉल्व किया होगा इन जनरल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मेनली कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए सॉल्व किया होगा, है ना? when it is function of x then you have to solve it in a very different way. सीरीज सॉल्यूशन मेथड और डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना होता है. नाउ बिफोर सॉल्विंग इट लेट अस ट्राई टू मेक दिस इक्वेशन क्लीन. अब ये वर्ड आप मुझसे बार बार सुनोगे. इफ आई एम सेइंग दैट लेट अस ट्राई टू मेक दिस इक्वेशन क्लीन, Dimensionless. वेरी गुड, दैट मीन्स आई हैव टू मेक इट डायमेंशनलेस. ये अब क्वांटम मैकेनिक्स सॉल्व करने का, हायर फिजिक्स में काम करने के लिए आपको हमेशा यह दिमाग में रखना है कि यार पहले इक्वेशन को क्लीन तो कर लो, फिर आगे का काम देखेंगे. ऑब्वियसली व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक द इक्वेशन क्लीन, इफ यू वांट टू क्लीन अप द इक्वेशन, you have to use the parameter to clean the equation. What is parameter here? M omega and M omega are the parameter and H is the very famous quantum mechanical constant. So let us try to clean this equation. और हमें इसे डायमेंशनलेस बनाना होगा, तो किसे किसे डायमेंशनलेस बनाना होगा? पूरा इक्वेशन डायमेंशनलेस हो जाए तो हमें क्या करना होगा? एक्स वाले पार्ट को डायमेंशनलेस बनाना पड़ेगा और ई वाले पार्ट को डायमेंशनलेस बनाना पड़ेगा, इजंट इट? Yes. क्योंकि इन्हीं दोनों का तो डायमेंशन है और यहां पर तो एक्स यहां आ गया है, तो वी हैव टू वर्क इट वेरी स्मार्टली.
So we have to take a new variable, and that new variable is m omega h cut into x. This is your new variable. देखो तो ये डायमेंशनलेस है. चेक कर सकते हो. m ओमेगा h का डायमेंशन क्या होता है? एंगुलर मोमेंट. Angular momentum. So that will be something m r square into omega. यही तो डायमेंशन होगा इसका. m cancel, this cancel. So this is 1 upon r. So this is 1 upon length into x is length. So yes, xi is what? Dimensionless constant. ठीक है ना? So you can use d xi m omega h cut dx. Sorry. We can write this whole thing in term of operators. So how you will write it? You can write just d upon dx is equal to root under m omega h cut d upon d xi. अगर ये है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो. You can take d upon dx either, you d upon d xi here. Now what will happen to d square upon dx square? क्या हो जाएगा बताइए? What will be this operator? M omega h cross m omega h cut plus d square upon d xi xi. square. So now this is one dimensionless thing, and another dimensionless thing we can assume k, this is nothing but 2e upon h cut omega. Obviously we know h cut omega is the dimension of energy. Yes या no? और ये 2 Yes, का फैक्टर क्यों लिया है वो अभी पुट करने के बाद हमें समझ में आएगा. So this E can be written as k by 2 h cut omega. So now we will put it here. और जब हम इसे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस h cut square upon 2m. When you are going to put here m omega upon h cut d square psi upon d xi square. Now your psi is a function of xi, that is some dimensionless quantity. So they are numbers. So number में खेलना हमने last class में सीखा है ना? How you can बहुत play अच्छे with से. the numbers, है कि नहीं? Okay. Plus half m omega square. x की जगह पर क्या पुट कर दे? h cut upon m omega xi square. ठीक है ना? देखते रहना कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं. ठीक है? Yes, So and this value is equal to e की जगह पर क्या पुट कर दे? k h cut omega by 2. सर यहाँ पे साई भी रहेगा. साई भी रहेगा, बिल्कुल साई भी रहेगा, साई भी रहेगा. सो यहां पर क्या आ जा रहा है? h cut omega by 2 with the minus sign, d square psi upon d xi square, and again you have h cut omega by 2 xi square psi plus h cut omega by 2 k xi. अब समझ में आया 2 क्यों दिया था? क्योंकि हर एक जगह पर 2 2 आ रहा है तो सारा का सारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आ जाएगा. ठीक है ना? सो जिसने फर्स्ट टाइम सॉल्व किया होगा उसने बहुत तरीके से सॉल्व किया होगा इसे. ऐसा थोड़ी है कि उसे पहली बार में नजर आ गया होगा. बट हम लोग वो सॉल्व कर रहे हैं जो फाइनल सॉल्यूशन है. तो दिस होल इक्वेशन कैन बी रिटन एज d square xi d xi square
must be equal to xi square minus k psi. देखो सही लिखा हूं, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया तो आ गया. एंड xi is dimensionless, k is dimensionless, so don't worry, they are just a number. Now किया क्या? कुछ नहीं किया है. अभी भी हम वहीं फंसे हुए हैं जहां पर हम चीजों को नहीं सॉल्व कर पाएंगे डायरेक्टली. आकाश कुमार 11 मामा जी ने कहीं क्या कहते, कॉल वॉल तो नहीं, वो बंद तो नहीं कर दी क्लास? क्या हुआ गुरुजी, ऑफ हो गई, बंद हो गई क्लास? देखियो क्लास चल रही है, बस ऊपर से देख ले. बोल रहे अरे यार क्या हो गया भाई? एक्चुअली सॉरी सर, वो क्या हो गया? गुरुजी भाग गए आपके? गुरुजी तो यहीं हैं आपके. अरे नहीं सर, वो ऑनलाइन क्लास चल रही है ना पापा की, इसलिए. अच्छा, पापा की अलग Yes. चल रही है, आपकी अलग चल रही है. यस सर. बहुत सही है. चलिए, तो आपके गुरुजी तो है ना आपके साथ? यस सर. ठीक है, चलिए, अच्छा लगा इंडियन वर्ड्स यूज करते हुए, है ना. चलो, तो अब आगे बढ़े इसको लेकर. चलो, तो अब इसे कैसे सॉल्व करें, ये बहुत ही बड़ी बात है. इट इज नॉट वेरी इजी टू सॉल्व डायरेक्टली. सो हम लोग पहले अप्रोक्सीमेशन मेथड को यूज करते हैं और ये केस लेते हैं xi स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन k. एटलीस्ट हम ये तो देखें प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पर किस तरह का सॉल्यूशन हो सकता है. आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एटलीस्ट अप्रोक्सीमेट करके तो कहीं से तो शुरुआत करनी होगी. सो वी हैव सॉल्व इट. सो ये जब आता है xi स्क्वायर psi, सो हम यहां पर चेक करेंगे कि कौन सा फंक्शन इसका सॉल्यूशन हो सकता है. और यहां हमें चेक करने के बाद दो ऐसे फंक्शन मिले विच आर इट्स सॉल्यूशन. आप चेक कर सकते हो. कैसे? साई की वैल्यू ये पुट करोगे, यू विल गेट दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन. साई प्लस साई की वैल्यू पुट करोगे, यू विल गेट दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन. सो बाय हिट एंड ट्रायल से हम लोगों ने ये ट्राई किया कि ओके, दीज टू मे बी द नेचर ऑफ सॉल्यूशन. अब इन दोनों में से किसे आपको एक्सेप्ट करना होगा, या दोनों को एक्सेप्ट कर सकते हो? बताओ किसे एक्सेप्ट करना चाहोगे? Linear combination. लीनियर कॉम्बिनेशन को एक्सेप्ट करना चाहोगे, प्लस वाले को या माइनस वाले को? और देखो xi है क्या? xi इज बेसिकली रूट अंडर m ओमेगा h कट इंटू x है. सो x टेंस टू इंफिनिटी पे आपकी साई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए. सो वी नो द बाउंड्री कंडीशन दैट x टेंस टू इंफिनिटी, दैट मीन्स xi टेंस टू इंफिनिटी, plus infinity as well as minus infinity, psi tends to 0. So which one is the allowed solution? Plus वाला या minus वाला? E raised to minus. Minus sign. So allowed solution is psi e to the power minus xi square by 2. This is your allowed solution. So xi square is greater than k. Sorry? Xi square is greater than k. हाँ बताओ क्या फिर? Sir, why we have taken this xi क्योंकि square हमारे greater पास कोई than ऑप्शन नहीं है. अब आप उस जगह पर पहुंच चुके हो जहां पर आपको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा. डायरेक्ट लिख करके, डायरेक्ट सॉल्व करके नहीं आ सकता है. तो आप क्या करोगे? एटलीस्ट हम ये तो देखना चेक की कोशिश करें कि xi जब बहुत बड़ा है तो सॉल्यूशन क्या है. आर गेटिंग माय पॉइंट? इसको आप एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन भी कहते हो. व्हेन xi इज वेरी बिगर देन व्हाट कैन बी द प्रॉपर सॉल्यूशन. तो हमने कंडीशन लेकर के देखा है
कि अगर जाई हमारा बहुत बड़ा होगा तो कैसा सॉल्यूशन हो सकता है। एटलीस्ट प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पर यह सॉल्यूशन हमारा कैसा मिलेगा, e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2 की तरह। डोंट वरी, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, लेकर के आएंगे अपने के आंसर में। नाउ इफ, तो एक तो सॉल्यूशन का नेचर तो पता चल गया आपको। नाउ लेट अस ट्राई टू go for a complete solution, and what we can assume that our complete solution can be some function h xi into e to the power minus xi square by 2. Are you getting my point? Solution हम guess कर रहे हैं। If this is your solution, then it should satisfy the complete solution, है ना? कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो व्हाट इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन? योर डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर साई डी जाई स्क्वायर इज इक्वल टू जाई स्क्वायर माइनस के जाई। आर यू गेटिंग दिस थिंग? अगर ये सॉल्यूशन है तो ये तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना? यस या नो? Yes, sir. यस। यस सर। और अगर ये सेटिस्फाई करने के बाद किसी तरह हम इसे गेस कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। यस सर, 100%। Yes. So this is the new way to solve the differential equation. Now, what do you have to do? You have to first calculate what is d xi upon dx. I have already calculated, so you can just do practice with yourself. So dh upon d xi minus xi h e to the power minus xi square by 2. Please do this calculation practice with yourself. And this value is d square h d xi square minus 2 xi dh upon d xi plus xi square minus 1 h and e to the power minus xi square by 2. So you can use this thing. So we will put it here. And once we will put here, the whole differential equation will be function of h. पूरा का पूरा differential equation किसका function हो जाएगा? That will function of h. Sir, in the And first what will be your equation, final differential equation? Sorry? Sir, in this first equation, Hmm. d d psi xi by upon d xi d करके है कह ना? रहा d psi by d xi Sorry, है d ना? xi upon d xi. Sorry. Yes, d xi upon d xi. Obviously. So what will be your differential equation? You have finally this differential equation. D square h d xi square minus 2 xi dh upon d xi plus k minus 1 h must be equal to 0. So this is your Sir. differential equation. और Sir. इस differential equation को a great mathematician हर्माइट ने पहले सॉल्व कर रखा था with the help of series solution. So I am not going into the series solution part. So Xi Hermite square has solved it. k- Sorry, Sir, xi square man 1 या फिर k minus 1? क्या हो गया? Sir, xi square minus 1? क्या जाए स्क्वायर माइनस 1 क्या है? सर ये k minus 1 नीचे लिखा है अभी ना? xi square minus 1 लिखा है और वहाँ k minus 1। k minus 1 लिखा है। आप इसको पुट तो करो यहां पर, इसको यहां पुट करो। ये तो सिर्फ इसी की वैल्यू है ना? ओके, ओके। अरे क्या बोल रहे हो? ये सीधा सॉल्यूशन थोड़ी हो गया।
Yes, sir. First you have to put it and after then you have to compare each and everything. ठीक Yes. है? ये वाला भी जाई स्क्वायर उधर जाएगा ना? Yes. जस्ट डू दिस प्रैक्टिस, है ना? ये प्रैक्टिस करो, ये आपका काम है ना? डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना आपका काम है. जस्ट ट्राई टू डू दिस प्रैक्टिस, यू विल गेट दिस थिंग. सो हर्माइट सॉल्व दिस. सर क्या हो गया? सर ये जो आपने लास्ट स्टेप में लिखा ये e टू द पावर साई एक्स स्क्वायर, ये 2 बार तो नहीं लिखा है ना? नहीं नहीं यार, क्या है, 2 बार कैसे होगा? दो बार कैसे आप होगा? जरा सही है कॉमन सर, आ सेंस तो रहा है लगाने सर। की कोशिश करो. आ हाँ? रहा है सर, आ रहा है सर। आएगा, 100% आएगा भाई. मैंने आज से नहीं, क्लास जब मैं ग्रेजुएशन में था उस समय से मैंने सॉल्व किया हुआ है इसे. ठीक है, मैं आपको स्टोरी भी बताऊंगा इसका. सो हर्माइट सॉल्व इट and the solution is Hermite polynomial for k minus 1 is equal to 2n. अगर आप k minus 1 की वैल्यू 2n पुट कर देते हो, और ये कैसे सॉल्व हुआ था? तो विद द हेल्प ऑफ सीरीज सॉल्यूशन. आई एम नॉट गोइंग इनटू सीरीज सॉल्यूशन, दैट इज, इसके अंदर मैं नहीं जा रहा हूं. सीरीज सॉल्यूशन, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज सॉल्यूशन का यूज. सीरीज सॉल्यूशन में क्या करते हैं? किसी को याद है सीरीज सॉल्यूशन? एच को क्या लिखोगे? यू विल राइट ए जे जाई जे. यहां से क्या निकालोगे? डी एच अपॉन डी जाई. ये क्या आ जाएगा आपका? समेशन ओवर ए जे, एंड जे विल बी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. ए जे जे जाई जे माइनस 1. फिर आप डी स्क्वायर एच अपॉन डी जाई स्क्वायर निकालोगे. वो क्या होगा? ए जे जे माइनस 1 एंड जाई माइनस 2. इसे आप यहां पुट करोगे और डिफरेंट कॉफिशिएंट्स को निकालने की कोशिश करोगे, और उस कॉफिशिएंट्स को निकालने के बाद आप गेस करोगे वो कौन सा फंक्शन है. सो दिस इज योर वन ऑफ द ब्यूटीफुल मेथड टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सीरीज सॉल्यूशन. सो आपको इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू जस्ट यूज व्हाट हर्माइट हैव डन. सो हर्माइट ने इसे सॉल्व किया, और जो उन्होंने सॉल्व किया, कब सॉल्व किया? जब ये जो नंबर था, ये नंबर क्या था? दैट नंबर इज व्हाट? 2n. 2n. और देखो क्या मजेदार बात हो रहा है. इफ k minus 1 is equal to 2n, where n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. k की वैल्यू क्या थी? What is value of k? E upon h cat omega minus 1 is equal to 2n. So 2e upon h cat omega is 2n plus 1, and e is equal to n plus half h cat omega. This will going to match the exact solution of हार्मोनिक ऑसिलेटर. एग्जैक्ट जो हमारा सॉल्यूशन था हार्मोनिक ऑसिलेटर का, उससे मैच कर गया. जब ये लैब के सॉल्यूशन से मैच कर गया, इसका मतलब क्या है? दिस इज करेक्ट वन, करेक्ट है ना? डिफरेंट टाइप के थ्योरी को, सॉरी डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये करेक्ट. सो दिस इज योर basically n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on, and you get the energy eigenvalue, and you have find energy eigenvalue is nothing n plus half h cat omega. And what is your complete wave function? Your h psi n is equal to, now you can write hn psi e to the power minus psi square by 2
where Hn xi is Hermite polynomial. So what is this? Hermite polynomial. And I can write sum of the Hermite polynomial for you. So H0 xi is equal to 1. H1 xi is equal to 2 xi. And at least you have to remember H2 xi is equal to 4 xi square minus 2. So these are your Hermite polynomial, and they can be indexes by the quantum number 0, 1, 2, and so on. And sometime this particular psi n can be written as n kit also. इसको हम लोग देखेंगे जब हम लोग इसे ऑपरेटर मेथड से सॉल्व करेंगे तो. Are you getting my point? So what is the final Hn? उसका भी मैं आपको एक्सप्रेशन दे रहा हूं, बट आपके कोई काम का नहीं होगा. What is your final Hn? Sorry, psi n. So your final psi n is psi n xi is m omega, and this is normalized one, pi h cat to the power 1 by 4, 1 upon 2 to the power n, factorial n, hn xi e to the power minus xi square by 2. This is a kit. xi n भी लिख सकते हो, इसी को आप n kit भी लिख सकते हो, and you can have nth level energy eigen state. So this is the complete solution. So what will be the everything written in a kit form? Kit form में कैसे लिखोगे? H psi n must be equal to what? N plus half h cat omega psi n, है ना? इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, h n kit is equal to n plus half h cat omega n kit, where n is equal to 0, 1, 2, 3, and you have energy eigenvalue. क्या क्या एनर्जी आइगन वैल्यू हो पा रहा है यहाँ पर, जरा देखिए. व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी आइगन वैल्यू? 0 half h cross h cat omega. omega by 2. Next level is what? 3 by 2 h cat omega. Next level is what? 5 by 2 h cat omega, and so on. So आपको बस ये ध्यान में रखना है, इसके एक दो फंक्शंस ध्यान में रखने हैं, and when we will solve different types of problems, different analysis, और भी ज्यादा चीजें आपकी क्लियर होगी. सो आज के लिए जस्ट डेरिवेशन पार्ट, बट इसका एग्जाम से कुछ भी लेना देना नहीं है. आपको फाइनली क्या रिजल्ट याद रखना है? ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है? दिस इज ओनली फॉर द योर एग्जामिनेशन. ठीक है? एवरीवन इज कंफर्टेबल? यस सर. ओके. सो कल की क्लास में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स करेंगे. और अब xi को x के टर्म में ले जाओगे तो क्या होगा? व्हाट इज वैल्यू ऑफ xi? रूट अंडर m omega h cut into x. So you can write each and everything in term of x also. So एक बार आप प्रैक्टिस कर लो, अपने अंदर चीजों को थोड़ा इनहेल कर लो, तो कल हम लोग इसको फाइनल कंक्लूड करेंगे विद द बेसिक प्रॉब्लम्स, जस्ट अ वेरी वेरी बेसिक प्रॉब्लम, जो कि ग्रेजुएट लेवल की प्रॉब्लम्स रहेगी. ठीक है? एंड देन हम लोग फिर इसे ऑपरेटर मेथड से भी सॉल्व करेंगे. दे आर मेनली फॉर एडवांस पार्ट. ठीक है? सो आज के लिए इतना ही रहने देता है. कुछ पूछना है? 2 मिनट बंद मत करिएगा. नहीं बंद नहीं कर रहा. आपको ये याद रखना है, ये एक्सप्रेशन याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है.
ये तो 100% याद रखना है, ठीक है। आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, वो जरा आप ट्राई करना, ठीक है। एटलीस्ट साई 0 और साई 1 प्लॉट करना, प्लॉट करके जरा मुझे सेंड करो, ठीक है। मैं कल प्लॉट करूंगा, बट आप जरा साई 1 और साई 0 प्लॉट करो। एन की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, है ना, और एच नॉट की वैल्यू पुट करोगे, एक्स के टर्म में प्लॉट करना है, ठीक है। एंड साई 1 को भी प्लॉट करना है, ठीक है। हो जाएगा ये, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू प्लॉट। कल मैं सारा एनालिसिस करूंगा, है ना। चलो, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। Yes, sir. Complete, sir. Thank you, sir.